कोशिश है पूरे भारत के ह्यूमैनिस्ट थिंकर सैकड़ों लोग मंच पे आए, परिवार की तरह इकट्ठे बैठे। बात कर रहे हैं किसी मनोज भाई। हेलो, मेरी तस्वीर अपनी तो आ ही नहीं रही है, पहले आ रही थी यार। सही लग रहा है क्या? स्टॉप वीडियो। डिस्कनेक्ट ऑडियो, रेज हैंड, हाइड माय। मानवता का गीत है, तो आशा करूंगा कि आप लोग भी साथ साथ बोलेंगे। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार, ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। जागृत हो जन जन के मन में, जागृत हो जन जन के मन में, मानवता का प्यार, मानवता का प्यार। हमारा ऐसा हो ऐसा हो संसार, संसार हमारा ऐसा हो संसार। राग देश का लेश नहीं हो, राग देश का लेश नहीं हो, है चिंता अवशेष नहीं हो, भय चिंता चिंता अवशेष नहीं हो, कहीं न हो अन्याय धरा पर, कहीं न हो धरा पर, अन्याय धरा पर, कहीं न हो अत्याचार, कहीं न हो अत्याचार। अत्याचार। हमारा ऐसा हो संसार, हमारा ऐसा हो संसार। संसार। भेदों की दीवार नहीं हो, भेदों की दीवार नहीं हो, रुद्ध बुद्धि का द्वार नहीं हो, रुद्र बुद्धि का का द्वार नहीं नहीं हो, समान अवसर सब ही को, हो समान अवसर सभी को, समान हो समान अधिकार। हमारा ऐसा हो संसार, ऐसा हो संसार। आखिरी पंक्ति है, भाव कर्म वाणी स्वतंत्र हो, भाव कर्म वाणी स्वतंत्र हो, और प्रेम ही मूल मंत्र हो, और प्रेम ही मूल मंत्र हो। मंत्र हो। मानव जीवन की नैया का, मानव जीवन की नैया का हो विवेक पतवार, विवेक पतवार। हमारा ऐसा हो संसार। हमारा ऐसा हो संसार। ये मानवता का गीत था, जो कि हम अक्सर जब भी हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है उस समय हम इस गीत को बोलते हैं, ताकि हम लोग अंदर मानवता में आए, हमने करना क्या है। तो आगे हो जी, सबका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ह्यूमैनिस्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने एकता का परिचय दे रहे हैं। तो ह्यूमैनिज्म क्या है? ह्यूमैनिज्म के बारे में ह्यूमैनिज्म इज ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ये एक जिंदगी का एक सकारात्मक एक दर्शन है, विचारधारा है। That without supernatural affirms our ability and responsibility to lead ethical life of personal fulfillment. ये बिना किसी
शुल्क के भूत प्रेत ईश्वर भाग्य किस्मत स्वर्ग नरक इनको माने। हमारे सीनियर मेंबर इकबाल जी, ये तो क्लैपिंग, ये सांकेतिक था, ये मजबूरी में हम आपको खिला सकते हैं। एक बार आपका The World Humanist Day, and this concept of World Humanist Day has been given by World Level International Organization, Humanist International. Earlier, it was known as IHAU. It has got its headquarters at London these days in the UK. Whole of the world has before it the most modern, most practical, most ideal philosophy of human life, that is humanism. 2-3 things I will point out, and I will like that other members also participate. Humanism is totally secular. It does not recognize the importance of religion. I will say a few things about that later on. Humanism is a rational philosophy. It does not believe in anything irrational, supernatural, imaginative, unreal. It believes in everything which has got a scientific base and a rational base, which can be justified. It depends upon human welfare. Humanism is totally aimed at human welfare, that every human being has to do something good for the other human beings. And humanism does not believe in anything religious, because outwardly every religion pretends to be ethical, teaching ethics, morality. But actually, in practice, every religion practices things which go against morality, go against ethics, because every religion is based upon supernaturalism, and all the rituals, all the karma kands which are related to the supernatural things. So my request is that we should all have faith in humanism. We should practice humanism, and we should try to propagate humanism everywhere, wherever we are. And World Humanist Day, which we are holding today, this is being celebrated, this is being marked all over the world, because as humanists, we believe that whole of mankind is one family, and all human beings are our brothers and sisters. And so, for everybody living on this earth, having equal rights, equal opportunities, equal importance, we wish all the best to all the human beings, and we request every human being to be worthy of living on this earth and be useful to others who are living on this earth. Not only human beings, all the flora and fauna, and all the living beings on this earth. All this, whatever there is on this earth, that is for human beings to make good use of, for himself, herself, and for others.
क्लैपिंग थैंक यू सर। भाव अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और अभी मैंने देखा कि अपने डॉक्टर रंजीत बेंगलोर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रंजीत तो बहुत ही अपने सीनियर ह्यूमैनिस्ट हैं, भीलवाड़ा यूनिवर्सिटी से ये हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। और डॉक्टर रंजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर रंजीत जी हाँ, तो अभी आप हाँ। आपका स्वागत है और आप अपने विचार रखिए। आज वर्ल्ड ह्यूमैनिस्ट डे पर परिवार की तरह आज हम इकट्ठा हैं आपकी बात सुनने के लिए। ठीक है जी। हम लोग मानववादी हैं। इसका मतलब यह है कि हम न जाति में, न धर्म में, न राष्ट्र में और न नस्ल में विश्वास करते हैं। हम सभी नस्लों को, सभी राष्ट्रों को, सभी धर्मों के लोगों को और सभी वर्गों के लोगों को अपने भाई बहन की तरह समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा हमारे यहाँ पुराने जमाने में व्यक्त की गई, केवल एक शब्दों में व्यक्त की गई, उसी को हम लोग पूर्णता की ओर पहुंचाना चाहते हैं। और इस दृष्टि से हम लोग सभी संकीर्णताओं के खिलाफ हैं, चाहे वे संकीर्णताएं धर्म पर आधारित हो, जाति पर आधारित हो, नस्ल पर आधारित हो, रंग भेद पर आधारित हो या राष्ट्र भेद पर आधारित हो। आप देखते हैं कि अलग अलग राष्ट्रों में ये संसार बटा हुआ है और एक राष्ट्र अपनी थोड़ी सी जमीन के नाम पर ये जमीन हमारी है और दूसरा कहता है नहीं हमारी है। मनुष्य का खून बहाते हैं, हथियारों में अपनी समृद्धि को नष्ट करते हैं। ये हथियारों की जो कहने की प्रतियोगिता है ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, अमानवीय है। मनुष्य अगर सब लोग सब मनुष्यों को भाई समझे तो लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी बात में मतभेद होता है तो उसे बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं शताब्दी में संसार की समस्याएं हल करने के लिए हिंसा कोई प्रभावक हथियार नहीं है। आखिरी बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या उसके बाद वियतनाम युद्ध तक समझ लीजिए आपने हिंसा के द्वारा, हिंसा के माध्यम से कुछ समस्याएं हल कर ली। लेकिन ये इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हो, चाहे वियतनाम वाला भी उदाहरण है कि हिंसा से आप कुछ नहीं कर सकते। आपने खूब ताकत लगा ली। अमेरिका इतनी बड़ी शक्ति थी तो वो कहते हैं कि एक एक वर्ग इंच पर एक एक बम डाल दिया वियतनाम में, तो भी उसको जीत नहीं सके। आखिर संसार के लोकमत के सामने उन्हें झुकना पड़ा। तो हिंसा किसी समस्या को हल नहीं कर सकती, ये हम लोगों का विचार है। और मैं इसको इस तरह से सूत्रबद्ध करता हूँ कई बार कि फ्रांसीसी क्रांति के जो 3 आदर्श थे, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, हम उन तीनों आदर्शों को एक साथ फलीभूत करना चाहते हैं। संसार में गड़बड़ें क्या हुई कि एक तरफ तो स्वतंत्रता के नाम पर समता को दबाया जाता है। अमेरिकी समाज बीमार समाज है क्योंकि वो स्वतंत्रता तो देता है सब लोगों को, हर आदमी बंदूक रख सकता है, लेकिन फिर बंदूक हर आदमी रखता है तो निरर्थक हत्याएं कितनी होती हैं इस ओर ध्यान नहीं देता है। छोटे छोटे बच्चे बंदूक चलाकर अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को मार डालते हैं। दूसरी तरफ सोवियत समाज था जो समता पर जोर देता था लेकिन स्वतंत्रता का हरण करता था, लोगों को दबा के पूरी की पूरी जातियों को, पूरी की पूरी नस्लों को स्टालिन के समय एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया और लोगों को कंसंट्रेशन कैंपों में रखा गया। ये सब समता के नाम पर स्वतंत्रता का दमन था। और अमेरिकी समाज में स्वतंत्रता के नाम पर, स्वतंत्रता के आधार पर, स्वतंत्रता को आदर्श मानते हुए समता का दमन किया जाता है। काले और गोरों के बीच कितनी मुश्किल से संघर्ष कर करके वैधानिक समता प्राप्त हुई है, लेकिन अब भी वास्तविक समता कालों और गोरों के बीच वहां नहीं है, जिसके कारण अब भी आंदोलन चल रहे हैं। आप देखते हैं ये सब। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इन तीनों आदर्शों को जो समाज वास्तव में संतुलित महत्व दे, तीनों को महत्वपूर्ण माने, एक के नाम पर दूसरे का दमन न करे, वही समाज
सच माने में मानवीय समाज हो सकता है। और हम लोग उसी मानवीय समाज की कल्पना और कामना के साथ संघर्षरत हैं। संसार की समस्याएं तभी हल होंगी जब एक तो युद्ध के हथियार सब बैन कर दिए जाएंगे, राष्ट्रीयताएं सीमित हो जाएंगी या समाप्त कर दी जाएंगी। किसी भी राष्ट्र के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए पहले। फिर सामान्य हथियारों को भी कम किया जाना चाहिए हर राष्ट्र का। और जिस तरह यूरोपियन यूनियन बनी है, इसी तरह एशियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी बननी चाहिए, है, जो अपने अपने देशों का एक संघ बन जाए, उस पूरे क्षेत्र का, एशिया का पूरा एक संघ बन जाए, जिसमें चीन भी हो, भारत भी हो, पाकिस्तान भी हो, श्रीलंका भी हो, बर्मा भी हो, सब अगर एक संघ बन जाए इसका, जैसे यूरोपियन संघ बना है, तो बहुत सी समस्याएं, आपस की लड़ाइयां झगड़े, बहुत सी विश्व संघ होना चाहिए जो यूएन या संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल कल्पना है। हालांकि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ मूल कल्पना के अनुसार नहीं चल पाता, क्योंकि विशेषाधिकार दिया हुआ है कुछ लोग, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और इस तरह से ये पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह जी सके, यही हम लोगों की कल्पना है। कई लोग ये सोचते हैं कि नैतिकता ईश्वरवादियों का ही विशेष क्षेत्र है, यानी ईश्वरवाद नैतिकता को जन्म देता है, पर यह गलत है मित्रों, क्योंकि ईश्वरवाद के आधार पर जो नैतिकता पलती है वह भय और लोभ के आधार पर होती है। या तो नरक का भय देते हैं आप कि अगर नैतिक नहीं होंगे तो नरक में जाएंगे, या स्वर्ग का लोभ देते हैं। और नरक और स्वर्ग दोनों हवाई हैं, बिल्कुल सही नहीं है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। इसलिए लोभ और भय पर आधारित नैतिकता सच्ची नैतिकता नहीं हो सकती। सच्ची नैतिकता केवल तर्क पर और विवेक पर आधारित हो सकती है। हम सोचें अपने मन में कि भाई मुझे क्यों नैतिक होना चाहिए, इसलिए कि अगर बाकी लोग अनैतिक हो जाएंगे तो मेरा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो नैतिकता पूरे मानव समाज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है और तर्क पर आधारित होना चाहिए। इसलिए महाभारत का वो वाक्य मुझे याद आता है, और वो सही अच्छा वाक्य है कि जैसा व्यवहार तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ न करें, वैसा व्यवहार तुम दूसरे लोगों के साथ मत करो। तो ये एक मानवीय नैतिकता है जो न लोभ पर आधारित है, न भय पर आधारित है, बल्कि तर्क और समानता पर आधारित है। इतना ही कहकर मैं आज आप सबको विश्व मानववादी दिवस की बधाइयां देता हूं और कामना करता हूं कि ये आंदोलन विश्व भर में, ये जो मानववादी आंदोलन दिन रात आगे बढ़े और एक दिन ये पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह शांतिपूर्वक और एक दूसरे की सहायता करते हुए सब रोग शोकों से दूर हो सब, और मानवता आगे विकास करे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहे। यही मेरी टिप्पणी। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रही सर। मलिक जी। हाँ, आवाज मलिक जी आपकी मुझे भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जो हमारे चेयरपर्सन है एयर मार्शल रिटायर्ड वीर नारायण जी हमारे बीच में है, और ये हमको अपनी आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे हम साथ मिलकर मना रहे हैं, तो विचार हमें प्रदान करें और एक दूसरे को मुबारकबाद दें। वीर नारायण जी। मनोज जी और साथियों, आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और मनोज जी को विशेषकर बधाई देता हूं कि उन्होंने आज ये फंक्शन बनाया, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में जकड़े हुए बैठे हैं। ये है कि 78 साल हो गए जबकि इंटरनेशनल ह्यूमन यूनियन की स्थापना हुई थी। इसमें उसका विशेष ध्येय था धर्म के लिए एक विकल्प निकालना, क्योंकि ये बिल्कुल साबित हो गया इतिहास में
कि धर्म से विभाजन होता है, धर्म से अंधविश्वास पैदा होता है, और धर्म से सबसे बुरी बात यह है कि धर्म से कट्टरपन पैदा होता है। तो विशेषकर इंडियन ह्यूमनिस्ट मूवमेंट का इरादा ये था कि किसी तरह से मानव जाति को अंधविश्वास से और कट्टरपन से छुटकारा मिले। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग का दृष्टिकोण जो है वो तार्किक हो, रीजन बेस्ड हो। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट आइजैक ने बहुत ही अच्छा कहा था कि ह्यूमनिज्म इज बेसिकली रीजन इन द सर्विस ऑफ कंपैशन। कंपैशन तो पहली बात है, जब तक कि कंपैशन नहीं है तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, और कंपैशन को आगे बढ़ाने के लिए रीजन की आवश्यकता पैदा होती है, क्योंकि अगर रीजन नहीं है तो हम अपने एम्स को खो सकते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है, अंधविश्वास से छुटकारा पाना है, कट्टरपन से छुटकारा पाना है, और बराबरी हर इंसान और इंसान के बीच में करनी है। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कहना कि ह्यूमनिज्म जो है वो केवल मानव जाति के लिए नहीं है, वो सारी पृथ्वी के लिए है और पर्यावरण के लिए है। तो कहते हैं जैसा कि अथर्ववेद में कहा है, मात्रा भूमि पुत्रो हम पृथ्विया, मतलब ये कि ये पृथ्वी हमारी माता है, और वसुधैव कुटुंबकम का तो आप लोगों ने सुना ही है। तो यही कहने के बाद मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि हमारी आगे वाली पीढ़ी ह्यूमनिज्म को अपनाएगी, आगे बढ़ाएगी। मानवतावाद जो है, मानवतावाद सारी मानवता के लिए है और ह्यूमन फीलिंग्स के लिए है, इसको बढ़ाना है। और कट्टरपन को हर हालत से, ह्यूमनिस्ट भी कट्टर हो जाए तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमें कट्टरपन से अलग हटकर हर व्यक्ति के विचारों को आदर देना है और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। विचार हमने सुने और समझे भी हैं, सुने भी हैं, उसको अमल में भी लाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। अब मैं आगे एक अरविंद जी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अरविंद जी, यस क्या आप सर। सुन पा रहे हैं? यस सर। अरविंद जी अपना थोड़ा परिचय दीजिए और अपने 3 से 5 मिनट में अपनी बात रखें। सर मैं अरविंद कुमार राजस्थान से हूँ। फर्स्टली सभी को बहुत बहुत बधाई हो विश्व मानवता दिवस की। हेलो सर, राजस्थान में आवाज आ कहाँ रही? से हैं? सर राजस्थान में माउंट आबू से। ठीक। यस सर, सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच दिया। और सर मानवता दिवस पे सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन को एक समानता दुनिया में फैलानी है, न कि इंडिया में, है ना। और सर एक जो था ना, ये रंजीत सर ने जो बात कही थी ना कि यूएसएसआर यूएसए, कम्युनलिज्म और फासिज्म, ये वही है कि एक शब्दता देता है और एक समानता चिंता है। तो इसी चीज को हटाना, रिमूव करना है। और सर ह्यूमंस की जो भी दिक्कत है वो ह्यूमनिज्म से दूर हो सकती है, न कि किसी रिलीजन के बेस पे, न किसी और तरीके से। ह्यूमंस की प्रॉब्लम ह्यूमन से चेंज कर सकते हैं सर। बस इतने से मैं बात कहना चाहूंगा सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो थैंक यू सर। बुकलेट मिली हमारी चंडीगढ़ ह्यूमनिस्ट वालों की? सर वो आपने मुझे भेजी थी, सेंड की थी, बट मेरा वो एक्चुअली दिक्कत हो गई थी। मैं आपको पर्सनल मैसेज करूंगा सर वापस उसके लिए। अच्छा, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसकी कोई बात नहीं। अब तुलसीराम जी हिसार यही वाला था कि आपके साथ कौन बैठा है और उसका परिचय दीजिए। क्या नाम है बेटी का? श्रुति। श्रुति। ठीक, श्रुति बोलो बेटा। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही है सर मलिक जी। आवाज नहीं आ रही है मलिक जी, आवाज नहीं आ रही है।
मेरी आवाज आ रही है श्रुति की नहीं आ रही? हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है, आपकी श्रुति आ की रही नहीं है। आ रही। अब ठीक है आवाज, अब ठीक है। सभी को वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। के अंदर टाइम करने जा रही हूँ। अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को बनाया जाए। नीरज की कविता पढ़ रही हो तुम? ठीक है, हाँ जी। पढ़ो। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब जितेंद्र पवार जी, हमने एक एक सेकंड का ध्यान रखना है। जितेंद्र पवार जी चंडीगढ़ से ही हैं, आप अपनी बात रखिए जितेंद्र जी। जी जितेंद्र पवार सर, नमस्कार जी सभी को, सभी मेंबर्स का मैं बड़ा स्वागत करता हूं और सभी को आज ह्यूमनिस्ट डे पे बधाई सभी को। मैं चंडीगढ़ से जितेंद्र, और मैं अपने विचार यही रखना चाहता हूं कि हमारे समाज में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है जाति पाति को धर्म को लेकर, और मैं तो ये सहन भी कर चुका हूं, और ये चीज मिटनी चाहिए आने वाली पीढ़ियों में से, और हमें बड़ी मतलब कोशिश करनी चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी इक्वालिटी के बेस पे समानता पर जी पाएगी। और अगर हम अपने समाज से शुरू करेंगे तभी ये मतलब बड़े लेवल पर होगा, धीरे धीरे तभी ये कंट्रीज में होगा जैसे। तो यही कहना चाहता हूँ मैं, और सभी को बधाई ह्यूमनिस्ट डे की दोबारा फिर। और शांति तो हमें हमारे अंदर होनी चाहिए, शांति सबसे अच्छा है। अहिंसा को अपनाना चाहिए, कट्टरता को खत्म करना चाहिए। यही कहते हुए मैं खत्म करूंगा सर, धन्यवाद जी। अभी अपने बीच में काफी देर से सुन रहे हैं एक श्रोता के रूप में विवेक आजाद जी, तो ये झांसी के रहने वाले हैं, तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो शहर के विवेक जी हैं। विवेक जी अब आप अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद मलिक जी। सबसे पहले मेरी तरफ से भी सभी को ह्यूमनिस्ट डे की शुभकामनाएं। और मुझे बहुत गर्व की बात है कि मैं इतने सीनियर्स लोग के साथ बैठा हूँ इस समय और मीटिंग कर रहा हूँ। और मैं स्पेशली जो है रंजीत सर को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, और नरेंद्र जी को भी, क्योंकि आपकी सर जो सीमाओं वाली जो आपने बात करी है रंजीत जी, वो मेरे भी जहन में थी, और मैं काफी समय से कुछ और लोगों से भी मैंने ये चीज सुनी थी, और आज आपने बहुत डिटेल में उसको बताया। वो वाकई एक बहुत बढ़िया और रिक्वायर्ड चीज है जो आपने बताया। और एशिया के बारे में जो आपने बोला है कि उनका भी एक वो बनना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात आपने बोली है, क्योंकि छोटी छोटी जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो आदमी को क्या बांटना शुरू करती है। वो जाति भी है, धर्म भी है, और ये राष्ट्र की जो सीमा आती है, कॉन्टिनेंट की जो सीमा आती है, या रेस की जो सीमा आती है, वो भी जो है हमें आपस में बांटती है। और जब भी हम बंटना शुरू होते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से मैंने देखा है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही जाता है, और ह्यूमन को ह्यूमंस के अगेंस्ट खड़ा करता है किसी भी तरीके से, और नुकसान क्या होता है, फाइनली ह्यूमंस का ही नुकसान होता है। तो दैट्स वाई कि हम ह्यूमनिज्म की तरफ जाने की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। अब सबसे कमाल की बात क्या है कि हम बचपन से लेकर साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, मेरे साथ के भी लोग पढ़ते हैं, और हमने शुरू किया था पढ़ना। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि हमने ग्रहों के बारे में पढ़ना शुरू किया, हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया, और आज जब हम इतनी उम्र के हो गए हैं, आज भी मैं उन पढ़े लिखे जो मेरे साथ के कलीग्स हैं या मेरे जॉब करने वाले साथ में या क्लास फेलो हैं, वो आज राहु केतु की बात कर रहे थे, आपने सुना होगा। और राहु केतु के बारे में भी जब मैंने डिटेल में पढ़ा, वो मैंने पहले भी पढ़ा था और आज भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्कंद पुराण में उसकी एक कहानी दी हुई है कि किसी एक दैत्य था, उसने अमृत पी लिया था, उसका सर काट दिया, और वो अंतरिक्ष में घूम रहा था, और वो सूरज को खा लेता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, और चंद्रमा को खा लेता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो ये कहानियां जो है ये हमारे रिलीजन जो है वो हमें परोस के देते हैं, और हम बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हुए उनको बिलीव कर लेते हैं। चलिए बिलीव कर लेते हैं, वो आपकी एक व्यक्तिगत वो प्रॉब्लम है, आप कुछ भी बिलीव करते हैं,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपने बिलीव पे इतने स्ट्रांगली हम लोग जम जाते हैं कि फिर दूसरे के बिलीव पे तो हंसते हैं, लेकिन खुद के बिलीव पे नहीं हंसते हैं। हमें हिंदू को लगता है कि मुस्लिम देखो क्या कॉमेडी कर रहा है, और मुस्लिम को लगता है हिंदू क्या कॉमेडी कर रहा है। तो एक दूसरे का रिलीजन एक दूसरे के लिए हंसी का पात्र है, लेकिन विवेक जी। अपना जो है वो बिल्कुल हाँ रिजिड है। यहाँ पे मैं बताऊंगा, हमें अपनी बकवास तो मतलब हमें घी शक्कर लगती है। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। हमें बकवास लगती है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा। जैसे ना, अब मेरा कुत्ता तो टॉमी, दूसरे का कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। एग्जैक्टली सर, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था, आपने बहुत डिटेल में उसको बता दिया। तो यहीं पे मैं अभी तो डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं। मैं जो मेरी तरफ से कहना चाहता था वो मैंने कह दिया है, और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा स्पेशली आपको मनोज जी के इतने सीनियर्स लोग के साथ जुड़ने का मौका आपने दिया, और इनकी बात सुनने की मौका मुझे मिला, और बहुत कुछ नया सीखने के लिए भी मिला, और कुछ नए विचार भी मिले। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को, और बधाई ह्यूमनिस्ट डे के लिए। धन्यवाद। ओप्पो 9 वाले मेरे ख्याल से मिस्टर गयूर जी, ओप्पो A9 वाले गयूर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? गयूर जी को अनम्यूट हो जाइए आप। सुदेश है, और मैं वैसे पूरा नाम मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं पिछले साल मीटिंग में गया था, तो उसके बाद मेरे अंदर बहुत चेंजेस हुए और मैंने बहुत कुछ सीखा। एक IHU की मीटिंग थी, उसके अंदर जाने के बाद मुझे लगा कि कुछ ना कुछ हमें बदलाव लेके आना चाहिए, हमें अपने अंदर जमीनी तौर पर बदलाव लेके आना है। तो उसके बाद से मैंने अपना नाम ही बदल दिया, सुदेश बी ह्यूमनिस्ट के नाम से मैंने अपना नाम चेंज कर दिया। तो मतलब जो हम करते हैं, जो हम बात करते हैं, हम उसको हकीकत में भी अपनी जिंदगी में लेके आए, तो यही सबसे बड़ी बदलाव की शुरुआत होती है। तो बाकी रंजीत जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मैंने उनका जो बात थी उनको ओवरऑल अगर एक थोड़े शब्दों में करूँ, समेटूं, तो मेरे ख्याल से उनका जो मकसद है, एक वर्ल्ड विदाउट वॉल, जो WWW जो वो एक शब्द है, तो वो मेरे ख्याल से वो सब जगह फिट बैठता है। तो हमें उसकी तरफ, उस दिशा की तरफ जाने की तरफ प्रयास करना चाहिए, ताकि हम लोग एक वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, जिसमें हर चीज शामिल हो जाती है, उस तरफ बढ़े हैं। तो बाकी मानवता दिवस की, ह्यूमनिस्ट डे की बहुत बहुत सभी को बधाई, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं आप लोगों के बीच में आज बोल पा रहा हूँ, इतने बड़े बड़े हस्तियों के बीच में बैठा हुआ बोल पा रहा हूँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ह्यूमनिस्ट डे। अब हमारे युवा सचिव नरेंद्र सिंह जी, हमारे युवा सचिव यूथ सेक्रेटरी चंडीगढ़ ह्यूमनिस्ट। बात कर रहे हैं आपने। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। ये शुक्रिया करना चाहूँगा मनोज मलिक जी का कि ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। वीर नारायण जी, रंजीत जी, भाटिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और सभी जो भी हस्तियां हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में आने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाएगा, और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पूरे इंडिया में, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नेशनैलिटी का और साइंस के एजुकेशन के लिए कुछ तर्कशीलता का आगे बढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा समय में नहीं लूँगा, मलिक जी रिक्वेस्ट करूँगा आप कंटिन्यू कीजिए, और हस्ती हमारे बीच जुड़ चुकी है, उनको मौका दिया जाए बात करने का। मलिक जी। किसको? ये भाटिया जी आ चुके हैं। भाटिया जी आ गए हैं? हाँ, भाटिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ दिख तो रहे नहीं। अरे भाट, हाँ बोलो। हाँ जी जावेद जी, जब्बू भाई जी। मैं प्रोफेसर जावेद हुसैन बोल रहा हूँ, और मेरा भाई साहब ऐसा रहा है कि मैं तो जब से स्कूल में था, स्कूल का बच्चा था, मतलब जब उस टाइम ह्यूमनिस्ट हो गया था, और पूरी लाइफ मैंने एज ह्यूमनिस्ट बिताई है। मैं बहुत पुराना मेंबर हूँ। आज
थोड़ा मुझे प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये जूम मैंने कभी लाइफ में यूज नहीं किया, पहली बार मनोज भाई ने फोन किया तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहली बार इसको यूज करने की कोशिश करता हूँ। अभी पूरा अच्छी तरह मैं समझ नहीं पाया हूँ जूम को। और दूसरी बात ये कि मेरी हियरिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुझे कान में कुछ लगाने चाहिए थे, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। मैं ये लगा रहा हूँ कि आगे चलकर और अच्छा होगा। वैसे तो हम लोग हर साल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 21 जून का फंक्शन किया करते थे और फंक्शन के बाद खाना भी होता था सब कुछ है, लेकिन वो कोरोना वायरस की वजह से वो सब तो कुछ हो नहीं पा रहा है जी। तो अब मैं क्या बताऊं, मैं बस आपको एक आध कपलेट सुना देता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कि आपने तो पूरा ह्यूमनिज्म पर गाना करवा दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मनोज भाई फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस थिंग। एंड सब लोग उसमें साहब और सारे लोग आए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो एक आध कपलेट सुन लीजिए आप कि हिंदू की ना अच्छी ना मुसलमान की बातें, हिंदू की ना अच्छी ना मुसलमान की बातें, अच्छी है तो फिर अच्छी है इंसान की बातें। और ऐसे इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो मुझे तो साहब इस पोइट्री से भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो बहुत बार ये सब पोइट्री इंडियन ह्यूमनिस्ट यूनियन में, और मैंने कहा एक आध आपको जो तो आई थैंक यू ऑल वेरी 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 ग्रेटली। और खास तौर से मैं मनोज भाई का बहुत ही थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और हमको पहली बार लाइफ में ये जूम सीखने, अभी पूरा जूम सीख, लेकिन अगले साल अगर फिर इस पे आप नहीं करेंगे तो हमें जब तक शायद हम जूम सीख लें अच्छी तरह से। तो थैंक यू वेरी मच एंड वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छे जावेद जी। और मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं जावेद भाई जी के जरिए ही इंडियन ह्यूमनिस्ट यूनियन के संपर्क में आया था। मैं 12 फरवरी 2016 को मैं डार्विन डे पे दिल्ली आया था, तो वहाँ मुझे जावेद भाई मिले थे, उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और फिर मंथली मीट में मुझे इनवाइट किया था। बस तभी से सिलसिला जारी है और तब से मैं सांप्रदायिक हिंदू से फिर मैं एक इंसान बन गया। तो फिर जी बोलिए। सभी साथियों को नमस्कार। विशेषकर मलिक जी और रंजीत जी से तो पहले से परिचित हैं, एक बार मिल चुके हैं, बड़ी खुशी हुई उनको सुन के। और ये अब ये नया जो अपना आया टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और विशेषकर ग्रामीण जो परिवेश है उसमें बड़ी समस्या आ रही है। मैं जहाँ बैठा हूँ तो शहर से थोड़ा दूर हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही। बड़ा अच्छा प्रयास है और मुझे लग रहा है कि हमारे देश के अंदर जो लिटरेसी जरूर बढ़ गई है, लेकिन एजुकेशन का स्तर अभी बहुत कम है। यानी कि लोग अपने दिमाग से, तर्क से काम नहीं लेते, बस सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, ना तो वो पढ़ते हैं और ना ही किसी की बात पे गौर करते हैं, सोचते हैं। तो हमारे सामने बड़ा चैलेंज है हमारी जो बात है उनको पब्लिक तक पहुंचाना, आम आदमी तक पहुंचाना। और हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जैसे रंजीत जी हैं, किताबें भी लिख चुके हैं, पढ़ भी चुका हूँ मैं, एक जाति का जंजाल, तो इनसे बड़ी आशा है। हाँ, ऐसे योद्धाओं से बड़ी आशा है और इन्हीं के साथ मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप अरुण हैं, ये भगवान दास के नाम से जो अरुण बोले हमें, बेटे आप अपने को अनम्यूट कर लो और आप अपनी बात रखिए सबके सामने। इस लीड में प्रॉब्लम है।
आवाज नहीं आ रही है। ये हेडफोन हटा लो। अरुण ये हेडफोन हटा लीजिए आप, हेडफोन निकाल के अपना उसमें से फोन में से निकाल लीजिए। हेलो आप हेलो। हाँ जी। सर जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। सर जी मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ जिसका नाम है जिंदगी एक सफर है सुहाना। पहले अपना परिचय दो। सर जी मेरा नाम अरुण है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं स्टैंडर्ड स्कूल मौली जागरा पार्ट 2 का छात्र हूँ। मैं एक स्वतंत्र ह्यूमनिस्ट हूँ। शाबाश। हेलो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन। जान जानी है जाएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये नए बच्चे हैं, ये हमारे ह्यूमनिज्म की एक फ्यूचर है, ये हमारा आशा का केंद्र है। और ये बच्चा ह्यूमन स्टडी सेंटर का बच्चा था, तो ये मैंने तो अभी कोरोना के चलते वो बंद है, के अंदर ये बातें चली गई हैं और अभी एक खुद ही अपना एक अच्छे इंसान यात्रा कर रहे हैं। अब काफी लंबी मीटिंग हो चुकी है, मैं आखिर में भाटिया जी को गुजारिश करूंगा कि कंक्लूडिंग नोट अपना दे दें। अब वो जुड़ चुके हैं, काफी वक्त पहले बोल चुके हैं, इसलिए भाटिया जी से रिक्वेस्ट है वो हमें आशीर्वाद दें अपना। भाटिया जी हमारे चंडीगढ़ ह्यूमनिस्ट के एंड फ्री थिंकर्स के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आजकल दिल्ली में पाए जाते हैं। हेलो। हाँ जी भाटिया जी, आपका वक्त शुरू हो चुका है। देखिए गल इस तरह है जी कि बहुत खुशी हुई है कि तुझे कुछ ना कुछ उपराला किया है कोरोना दे महकमे विच भी अज दे जमाने विच, पर मैनू ठीक तरह पता नहीं कि अज दा एग्जैक्टली सब्जेक्ट की है। पर मैं एक जनरल गल करना चाहना अपने साथियों नाल। मेरी आवाज सुनी जा रही है? हाँ जी आवाज आ रही है, आ रही आवाज आ रही है। अच्छा, असल च है कि मैं एक जनरल गल करांगा कि साडे असीं बहुत कोशिश करते हैं, मानवता बड़ी देर तो कोशिश करती है कि अमन नाल रहे, अच्छी तरह रहे, साइंटिफिक जिंदगी जीवे, पर साडे कोल दो वड्डे वड्डे ऐसे जहरीले सप ने जिहड़े सानू खा जांदे ने। ਉਹ ਮੇਨ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਹਬ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਪਲੇਟ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੰਗ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਚ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਇਕਾਨਮੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਪਲੇਟ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ मैं थोड़ी जी 2-4 लाइना सिर्फ इसी तो सुनाना चाहना। खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मगरब में हो या मशरक में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे कि सरहद पर, रूए तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले या औरों के ज़ीस्त फाकों में तिल मिलाती है। मेरी आवाज सुनी जा रही है? बहुत बढ़िया। मेरी आवाज सुनी जा रही है? हाँ, आ रही है। जी आ रही है। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। क्या बात है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बहुत खूब। तो ऐसे तो बहुत कुछ कहने होंदा, बड़ी कोशिश होंदी है साडी, पर एक किसी न किसी शक्ल च लोग साडे ते हावी हो जाते हैं। पर फिर भी मैं मुबारकबाद देना उन्होंने सारे साथियों को जिन्होंने अपना वक्त कट के इत्थे कुछ ना कुछ कहने दी, कुछ ना कुछ सुनने दी, कुछ ना कुछ सानू गाइड करने दी, कुछ ना कुछ सानू समझाने की कोशिश की है। और असी भी कोशिश करांगे कि वध तो वध समझ सकिए और ये हो सके तो समझा भी सकिए। तो मैं इन शब्दों नाल ही अपनी गल जी खत्म करदा हां। भाटिया जी बहुत ही अच्छे, आपने हमारी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। अभी कुछ टेक्निकल दिक्कत है, यहाँ हमारी लाइट चली गई है, तो अब इसको करते हैं। सुदेश जी, नरेंद्र जी। हाँ जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे। जय इंसान जय करवा दो। हाँ, एक मिनट में थोड़ा कंक्लूडिंग कर दूं इसको। तो आज की मीटिंग हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? तो आज की मीटिंग जिस उद्देश्य से बुलाई गई थी, हेलो, तो आज की मीटिंग जिस उद्देश्य से बुलाई गई थी वो हमारा उद्देश्य सफल रहा है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे विचार रखे। कुछ मेंबर्स उनको हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, हम ज्यादा टाइम देना चाहते थे, पर क्योंकि टाइम की लिमिट है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और आगे से कोशिश रहेगी कि सभी सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिले और ज्यादा वक्त मिले। तो सभी मेहमानों का सहयोग करने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, ताकि ह्यूमैनिटी की बात होती रहे, मानवता की बात होती रहे। बातें होती रहेंगी तो बदलाव भी जरूर होगा। इसी उद्देश्य के साथ अंत में हम इस मीटिंग को जय इंसान जय विज्ञान कहकर समाप्त करेंगे। तो आप सभी लोग अपने हाथ आगे कर लें ताकि हम लोग इसको फॉर्मल कंक्लूड कर दें। तो सभी हम लोगों ने एक मनोज जी आ चुके हैं, तो हम इसको मीटिंग को क्लोज करते हैं जय इंसान जय विज्ञान कहकर। तो सभी लोग बोल देंगे एक बार, तो सभी लोग अपने हाथ कर लें आगे। जय इंसान जय विज्ञान बोला है हमने। खिलाते खिलाते थक जाते हैं ना जब नहीं खाता कोई बच्चा। तो जय, तो इकट्ठे बोलेंगे सभी, जय इंसान जय विज्ञान, जय इंसान जय विज्ञान। आलू का सैंडविच आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी चिढ़ती थी।
मीटिंग में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसी मीटिंग चलती रहेगी और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आगे भी ऐसे जुड़े रहें ताकि कुछ हम आगे और अच्छा सोच सकें। कुछ टेक्निकल दिक्कत थी पर फिर भी हम आगे कोशिश इससे और अच्छा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय इंसान, जय विज्ञान।